Good morning, students. Myself Satik Roy from Wises Institute, Kota, ASGI. I am biology faculty. I'll be teaching you today the chapter cell, which is there in the syllabus of NEET. Now, this class will be just an introductory class for the chapter cell, and followed by this class we will be having all other continuation of this chapter. So not wasting the time, let us move to the chapter. Okay, as the name itself suggests, what is cell? Cell is basic unit of life. Now what do you understand by basic unit? Let us see a basic board work. Cell gives rise to tissue, tissue gives rise to organ, organ gives rise to organ system, and organ system gives rise to an organism. Now, whenever we are talking about any living identity, any organism, we can look after that. If we go and classify its body, we will be having some organ systems within that organism. Now, if we more classify it very simply, we will get organs within that organ system. That organ system must be made up of some tissues, and that tissues must be made up of cell. So what from this flow chart we are obtaining, it is that cell is what? Cell क्या होता है? एक basic unit. What is cell? It is basic unit. That means anything in totality. When you talk, the simplest form of that thing is being called as unit. So simplest form of any organism, we can find it as cell. So be it plant, be it animal, any living organism, cell will be the basic unit. So it is known as basic unit of life. Now, who discovered this cell? This is a very important topic. Question comes. The discovery of cell was first done by Robert Hooke. Robert Hooke ने पहले सेल डिस्कवर किया था, बट कहां से? कॉर्क से. What is cork? Cork is actually made up of from the bark of the tree. ट्री जो होती है, ट्री की जो खाल होती है, सूखी हुई खाल, उससे कॉर्क बनता है, और कॉर्क से रॉबर्ट हुक ने सेल आविष्कार किया था. तो कॉर्क क्या है? नाखून की तरह, जस्ट लाइक नेल. व्हाट इज दैट? डेड टिश्यू. तो ट्री का भी डेड टिश्यू है. सो वॉट एवर ही सॉ फ्रॉम इन द फॉर्म ऑफ सेल फ्रॉम कॉर्क was actually dead. So Robert Hooke discovered dead cells from cork. Okay, the first cell being discovered by Robert Hooke was actually dead. Now Anton von Leeuwenhoek was that scientist who discovered living cell. Now the name cell was also given by Robert Hooke. Why did he give the name cell? When he looked after it, उस समय तब भी कंपाउंड माइक्रोस्कोप आविष्कार नहीं हुआ था. So he used some simpler technique, simple microscope and magnifying glasses to see. From there he saw some square shapes like honeycombs. Okay, square shapes which are being found in honeycomb just like that. क्यों? क्योंकि ऑब्वियस है, कॉर्क से अगर देख रहे हैं तो कॉर्क किस चीज से बना होता है? प्लांट के पार्ट से. सो प्लांट सेल इज स्क्वायर इन शेप. सेल के कई सारे वेरिएशन होते हैं. सेल ओवल होते हैं, सेल इलोंगेटेड होते हैं, बहुत सारे वेरिएशन के होते हैं. स्फेरिकल होते हैं, एसिमेट्रिकल भी होते हैं. लेकिन रॉबर्ट हुक ने क्योंकि कॉर्क से देखा था, इसीलिए उन्होंने स्क्वायर शेप बेसिक यूनिट्स को फाइंड आउट किया. इसीलिए उन्होंने इस बेसिक यूनिट का नाम सेल रख दिया. क्योंकि सेल क्या होता है? आप कभी भी जेल्स में जाओगे तो जेल्स में आप क्या देखोगे? स्क्वायर 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 रूम. तो उसको क्या कहते हैं? सेल. जेल में एक एक रूम जो होता है बेसिक यूनिट, वो क्या होता है? सेल के नाम से जाना जाता है. हनीकॉम्ब में भी एक एक जो स्क्वायर शेप, जो छोटा छोटा एक स्मॉल पोर्शन है, उसको सेल कहेंगे. तो likewise he named it as cell. After that Anton von Leeuwenhoek discovered living cell. Then what comes? Then comes cell theory. अब cell theory का
आविष्कार किन्होंने किया? स्केलिडन और स्कावन, एक बॉटनिस्ट थे, एक जूलॉजिस्ट थे। सेल थ्योरी में आता क्या है? ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स आर मेड अप ऑफ सेल, which is number 1. Number 2 point is all cells are covered by a cell membrane which is semi permeable in nature. ठीक है, सेमी परमिएबल का दूसरा वर्ड हम लोग यूज कर सकते हैं सिलेक्टिवली परमिएबल। वाई सिलेक्टिवली परमिएबल? मैं मेरे रूम में दरवाजा खोलूं, जिसको आने देना चाहता हूं उसे ही आने दूं, जिसको बाहर जाने देना चाहता हूं उसे ही बाहर जाने दूं। तो ये क्या हो गया? दिस इज सिलेक्टिविटी ऑफ परमिएबिलिटी। So cell membrane is always selectively permeable in allowing anything coming inside it or allowing anything going outside it. Okay, so these were the two main points of cell theory. The third point of cell theory was being given by Rudolf Virchow. He also stated his point within the cell theory only. It is the third point which was being stated by Rudolf Virchow and later on included in cell theory. What is that? Omnicellular e-cellular. Omnicellular e-cellular का मतलब अगर सिंप्लीफाई करके लिखे तो क्या होगा? All cells comes from pre-existing cells. All cells come from pre-existing cells. कोई भी सेल, कोई भी ऑर्गन का टिश्यू का सेल अभी अगर हम लोग देख रहे हैं, इट इज नॉट दैट कि वो एब्रप्टली कहीं से आ गया हो। इट मस्ट हैव टू कम फ्रॉम इट्स प्री एग्जिस्टिंग सेल। सेल अगर आज है तो वो सेल डिवीजन होके ही आया है और सेल डिवीजन जरूर उससे पहले जो सेल रहा होगा उसी से आया है। ऑल सेल्स आर कमिंग फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल्स। नाउ कमिंग टू द डिस्ट्रीब्यूशन of things which we are going to study in this chapter. So मैंने पहले ही कहा था कि एक प्रीव्यू है, तो प्रीव्यू में हम लोग जान लेते हैं कि इस चैप्टर में क्या क्या पढ़ेंगे। सबसे पहले सेल के अंदर प्लाज्मा होती है। व्हाट इज प्लाज्मा? द सेमी फ्लूइड और मैट्रिक्स, ओके, क्वासी फ्लूइड इन नेचर। क्वासी फ्लूइड मतलब क्या? सेमी फ्लूइड मतलब क्या? जेली लाइक सब्सटेंस। ना वो पानी के तरह फ्लूइड है ना ही वो सॉलिड है, इट इज अ जेली लाइक सब्सटेंस। ओके, मैट्रिक्स क्या? वो प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करती है। प्लेटफॉर्म मतलब स्टेज जिसके ऊपर सारे सेल ऑर्गेनिल्स काम करते हो। सेल प्लाज्मा, the plasma is actually providing the space over which the cell organelle works. Now प्लाज्मा को किस तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हैं? प्लाज्मा को हम लोग प्रोटोप्लाज्म कहते हैं इन टोटालिटी। प्रोटोप्लाज्म का दो वेरिएशन होता है। सेल के न्यूक्लियस के अंदर जो प्लाज्मा रहती है उसको बोलते हैं न्यूक्लियोप्लाज्म। न्यूक्लियोप्लाज्म के बाहर और सेल मेम्ब्रेन तक का जो स्पेस होता है उसके अंदर जो प्लाज्मा रहती है उसको बोलते हैं साइटोप्लाज्म या साइटोसॉल। सो साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियोप्लाज्म मिलके बनता है प्रोटोप्लाज्म। नाउ अब सेल देखते हैं। साइटोप्लाज्म पहले ही हमने पढ़ लिया। साइटोप्लाज्म क्या है? प्लाज्मा से बना हुआ है। अब ऑर्गेनिल्स में क्या क्या होगा? न्यूक्लियस एंड ऑल अदर सेल ऑर्गेनिल्स। ठीक है, अब न्यूक्लियस एंड ऑल अदर सेल ऑर्गेनिल्स में ये हमारा चार्ट बन गया। यही सब हम लोगों को पढ़ना है। क्या है? एक तो होते हैं मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनिल और दूसरी होती है नॉन मेम्ब्रेनस सेल ऑर्गेनिल। मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनिल में हम लोग क्या पढ़ेंगे? सबसे पहले न्यूक्लियस आएगी, न्यूक्लियस के बाद एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के बाद गोल्गी बॉडी, लाइसोसोम, वैक्यूल, वेसिकल्स, माइटोकॉन्ड्रिया, प्लास्टिड्स। इंपॉर्टेंट पॉइंट टू नोट, plastids are only found in plant cell. Okay, whereas सेल में कुछ नॉन मेम्ब्रेनस सेल ऑर्गेनिल भी मिलती है, जैसे राइबोसोम है, जैसे सेंट्रियोल है। तो राइबोसोम क्या होता है? दो वैरायटी के होते हैं। एक 70S का होता है, एक 80S का होता है। 70S का जो होता है वो प्रोकैरियोटिक सेल्स में पाए जाते हैं, 80S का जो होता है वो यूकैरियोटिक सेल्स में पाए जाते हैं। लेकिन
राइबोसोम और सेंट्रियोल, बीट प्रोकैरियोट बीट यूकैरियोट, वो हमेशा राइबोसोम और सेंट्रियोल वो नॉन मेम्ब्रेनस ही रहेंगी, मतलब इनके ऊपर कोई मेम्ब्रेनस कोट नहीं रहेगा, जस्ट साइटोप्लाज्म में ऐसे ही प्रेजेंट रहेंगे। लेकिन इधर के जितने भी हम लोगों ने सेल ऑर्गेनिल देखा, ये सारे एज इट इज सेल का जैसे अपना एक मेम्ब्रेन होता है, हर एक ऑर्गेनिल का भी अपना एक मेम्ब्रेन होता है। उसके बाद और डिटेल्स में हम लोग क्या स्टडी करेंगे, सेल मेम्ब्रेन। अब मेम्ब्रेन कैसा होता है दिखने में, मेम्ब्रेन का क्या क्या काम होता है, और फिर लास्ट में जाएंगे सेल वॉल, जो कि यहाँ पे सिर्फ ओनली प्रेजेंट इन प्लांट सेल, एनिमल सेल में ये नहीं होता, और सेल मेम्ब्रेन एनिमल और प्लांट सेल दोनों में होता है। सो गेटिंग अ रैपिड लुक ओवर इट, साइटोप्लाज्म हम पढ़ेंगे, साइटोप्लाज्म का क्या क्या कंटेंट होता है, क्या फंक्शन है नहीं है। सेल ऑर्गेनिल्स में हम लोग मेम्ब्रेन बाउंड नॉन मेम्ब्रेनस ऑर्गेनिल पढ़ेंगे, सॉरी सेल ऑर्गेनिल में हम लोग मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनिल और नॉन मेम्ब्रेनस ऑर्गेनिल पढ़ेंगे। उसके बाद सेल मेम्ब्रेन पढ़ेंगे, सेल मेम्ब्रेन का डिटेल स्ट्रक्चर एंड फंक्शन पढ़ेंगे, उस स्ट्रक्चर को कैसे डिस्कवर किया था वो भी पढ़ेंगे, और लास्ट में सेल वॉल का स्ट्रक्चर एंड फंक्शन पढ़ेंगे। अब आते हैं टू मेन वैरायटी ऑफ सेल्स में। इन सभी चीजों को इंक्लूड करने के बाद और इन सभी पॉइंट्स को मद्देनजर रखते हुए, कीपिंग ऑल दोस पॉइंट्स एज कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सेल, वी क्लासिफाई द होल काइंड ऑफ सेल्स इनटू टू कैटेगरी। दो कैटेगरी में बांटा गया है, एक प्रोकैरियोटिक सेल, इसीलिए मैंने स्टार लगाया है क्योंकि ये पॉइंट्स गिने जाते हैं, इन पॉइंट्स के बेसिस पे ही यहाँ पे कैटेगराइजेशन होता है। एक प्रोकैरियोटिक सेल और एक यूकैरियोटिक सेल। प्रोकैरियोटिक मतलब क्या है, प्रो मतलब पहले, प्रिमिटिव, कैरियन मतलब न्यूक्लियस, मतलब प्रॉपर न्यूक्लियस, और सिर्फ न्यूक्लियस ही नहीं, न्यूक्लियस एंड ऑल मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनिल प्रॉपरली बनने से पहले, मतलब एकदम प्रिमिटिव काल के, प्रिमिटिव समय के जो सेल्स थे उनको प्रोकैरियोटिक्स में डाला गया है। यहाँ पे हम लोगों को ना ही न्यूक्लियस प्रॉपर मिलने वाला है मेम्ब्रेन बाउंड, ना ही कोई भी मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनिल मिलने वाले हैं, सारे के सारे नॉन मेम्ब्रेनस होंगे, और नॉन मेम्ब्रेनस तो रहेंगे ही, मेम्ब्रेन बाउंड कोई नहीं रहेंगे, सारे के सारे नॉन मेम्ब्रेनस रहेंगे। क्यों? क्योंकि ये प्रिमिटिव सेल्स है। अब लाखों करोड़ों साल से, फ्रॉम लैक एंड क्रोज ऑफ इयर्स आफ्टर इवोल्यूशन होके प्रोकैरियोटिक सेल ने यूकैरियोटिक सेल्स बनाए हैं। तो यूकैरियोटिक सेल्स में हम लोगों को क्या मिलेगा, इन यूकैरियोटिक सेल्स वी विल फाइंड ऑल दिस कैरेक्टरिस्टिक्स, ऑल कैरेक्टरिस्टिक्स। मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनिल होंगे, नॉन मेम्ब्रेनस ऑर्गेनिल होंगे, सेल मेम्ब्रेन फुल्ली ग्रोन होगा, उसका फंक्शन भी बहुत ठीक ठाक से रहेगा, और प्लांट सेल भी होंगे तो सेल वॉल भी होगा। सो लेट अस लुक इनटू द कंटेंट, मींस कौन कौन होते हैं वहां पे, होगा कौन कौन। प्रोकैरियोटिक सेल्स में वी विल फाइंड मोनेरा। ओके, सो 5 किंगडम क्लासिफिकेशन पढ़ा ही है हमने, हम जानते हैं 5 किंगडम होता है, मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंगाई, प्लांटी, एनिमेलिया। तो मोनेरा किंगडम जो है पूरा का पूरा बैक्टीरिया, ऑल बैक्टीरिया कम्स अंडर प्रोकैरियोटिक सेल। ओके, इसमें पीपीएलओ आता है, प्लूरोप्न्यूमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म, माइकोप्लाज्मा आता है जो कि पूरे लिविंग वर्ल्ड का स्मॉलेस्ट सेल है। वेरी इंटरेस्टिंग पॉइंट एंड नोट इट डाउन, स्मॉलेस्ट सेल है, इससे एमसीक्यू आता है। साइनोबैक्टीरिया, ब्लू ग्रीन एल्गी, एक्चुअली इट इज अ बैक्टीरिया बट इट बिहेव्स लाइक एल्गी। एल्गी किसमें आता है, प्लांट किंगडम के सबसे बेसिक फाइलम में आता है। सो ये एक हिंट दे रही है, ये समझने वाला चीज है, देखो कि बैक्टीरिया से ही सब कुछ इवॉल्व हुआ है। दैट मीन्स साइनोबैक्टीरिया एक्चुअली प्लांट किंगडम के बेसिक एल्गी के फॉर्म को दर्शा रही है। ये एक्चुअली एल्गी है नहीं बट इट बिहेव्स लाइक एल्गी, दिस इज अ बैक्टीरिया, साइनोबैक्टीरिया। ओके, सो ये 4 पार्टिसिपेंट है जो प्रोकैरियोटिक सेल्स में आते हैं, 4 मेंबर ऑफ प्रोकैरियोटिक सेल्स। ओके, नाउ इन यूकैरियोटिक सेल, यूकैरियोटिक सेल में हम लोगों को क्या मिलेगा, ऑल ऑर्गेनिजम्स ऑफ ऑल अदर 4 किंगडम। मतलब मोनेरा को छोड़ दे तो क्या बचता है 5 किंगडम में, प्रोटिस्टा, फंगाई, प्लांटी, एनिमेलिया। सारे प्रोटिस्ट, सारे फंगाई, प्लांट किंगडम के सारे फाइलम के सारे ऑर्गेनिज्म, और एनिमल किंगडम के सारे फाइलम के सारे ऑर्गेनिज्म। ओके,
स्टूडेंट्स स्टे विथ अस, गेट ट्यून्ड, अगले वीडियो में अगला कंटेंट आ रहा है सेल चैप्टर का।